हम लोग आज एक नया लेसन पढ़ेंगे। वैसे भी आज विजय दिवस के रूप में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग बीर अब्दुल हमीद जो एक परमवीर चक्र के विजेता है और हमारे देश की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, आज उन्हीं पर आधारित एक पाठ है बीर अब्दुल हमीद, लेसन नंबर 7। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ थोड़ा लंबा है लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे इसको। आप चाहें तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में 2 या 3 दिन में आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसमें इसके बाद आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, इसके बाद इसका अनुवाद बताते हुए पाठ को समाप्त करेंगे। सीधे पाठ पर आते हैं। बीर अब्दुल हमीद। This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. He was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. Abdul Hamid was born in Dharmupur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikiwin-Amritsar road in the Khemkaran sector of India. It had reached a village named Chima. This village was on the Indo-Pak border. In this sector, the battle had been going on since September 6. Here Havildar Abdul Hamid and the other soldiers of 6th Grenadiers Company were waiting to face the Pakistan Army. Brave Abdul Hamid was sitting in a jeep. He had a special gun. The Patton tanks of the Pakistani army were not very far from him. He could hit the tanks with the guns if he wanted to. He was a good shot, but he did not want to waste his shots. He wanted to hit the tanks with each of his shots. The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. They were approaching nearer and nearer. They were firing continually. Brave Abdul Hamid marched forward. He saw a Pakistani tank. He turned his gun and fired a shot. The tank caught fire and went up in flames. All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. Suddenly he saw another tank. He fired a shot again and it also busted into flames. 4 more tanks were seen. The Pakistani wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. He was their biggest enemy. They turned the guns of their tanks towards him. Before they could fire, Abdul Hamid hit the 3rd tank too, and there it went. It had caught fire. Flames were rising up into the sky.
but alas, one shell of the enemy hit his jeep. The brave hero fell down. He was deeply wounded, yet he did not lose heart. He ordered his soldiers move forward and fight on. They obeyed his orders and fought bravely. Some more tanks of the enemy were destroyed. The Pakistani soldiers were afraid and fled. This brave soldier of the Indian Army died for his country. He was awarded the Paramveer Chak posthumously. He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. His village has been named Hamid Dham after his name. सो स्टूडेंट्स, ये हमने रीडिंग की. अब इसमें आए हुए हार्ड वर्ड्स की मीनिंग. कंपनी होती है सैनिकों का एक दल, उसे कंपनी कहा जाता है. हवलदार एक रैंक होती है सेना में, आर्मी के अंदर, जिनके बाजुओं पर 3 फीता लगता है, उसे कहते हैं हवलदार. ये रैंक है. ब्रेव माने बहादुर, बिकेम माने बना, रेजिमेंट माने कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी. कंपनी से बड़ी होती है रेजिमेंट, कर्नल उसका जो होता है कमांडर होता है. मार्च आगे बढ़ना, बैटल युद्ध, फेस सामना करना, अ गुड शॉट माने माहिर, डेंजरस माने खतरनाक, अप्रोचिंग माने आ रहे थे, बढ़ रहे थे, कंटिन्यू माने लगातार, वेंट अप इन फ्लेम्स लपटों में घिर गया, सडनली माने अचानक, बस्ट इनटू फ्लेम्स आग का गोला बन जाना, आग का रूप ले लेना, नेम आफ्टर माने उनके नाम पर, अटैक हमला करना, टर्न माने घुमाया, कैच फायर माने आग पकड़ना, राइजिंग हाई माने ऊंचा उठ रही थी, फेल डाउन नीचे गिर गया, वुंडेड माने घायल, लूज हर्ट माने हिम्मत हारना, डिस्ट्रॉयड नष्ट किए गए, अफ्रेड डर जाना, फ्लड माने भाग गए, अवॉर्डेड माने सम्मान दिया गया, पोस्टमसली माने मरणोपरांत, मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, रिवर्ड माने सम्मान दिया जाना, और रिमेंबर्ड माने याद किया गया. ये रहे इनकी हार्ड वर्ड्स, कठिन मीनिंग. अब हम सीधे पार्ट पर आते हैं, इसके व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए सीधा इसका अर्थ समझते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद. यह कहानी एक बहादुर सिपाही अब्दुल हामिद की है. ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इंडियन आर्मी. वह भारतीय थल सेना में एक सैनिकों की टुकड़ी के ऊपर या एक सैनिकों की टुकड़ी के हवलदार थे. क्वार्टर मास्टर, कंपनी अर्थात उस सैनिकों की एक टुकड़ी के ऊपर उनका हवलदार थे. उनका रैंक था हवलदार. उनके एक सैनिकों की टुकड़ी के वो नेता थे, लीडर. ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर. वह एक बहुत बहादुर सिपाही थे. He fought in 1965 war between India and Pakistan. भारत और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध जो 1965 में लड़ा गया, उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था. अर्थात वह भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव घामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को
में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके माँ का नाम शकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहेंगे? Would you like to know? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे ही बिकेम द हीरो, कैसे वे अर्थात अब्दुल हामिद वे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में लड़े गए युद्ध के हीरो अर्थात उसके एक नायक के रूप में, एक हीरो के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, वो कैसे हीरो बन गए और सेनानी न बन सके और सेनानियों में ये सब सेनानियों के हीरो कैसे बन गए उस युद्ध में, क्या आप ये जानना चाहेंगे? अवश्य। It was the early morning of 10 September 1965. 10 सितंबर 1965 10 सितंबर 1965 की सुबह के 10 बजे थे। 10 बजे नहीं, इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग, क्या सुबह सुबह 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात है, प्रातःकाल का बात है, सवेरे का समय था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भिक्कीविंड अमृतसर रोड इन खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक की एक सैन्य टुकड़ी, रेजिमेंट एक सैन्य टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पर स्थित भिक्कीविंड की तरफ आगे बढ़ रही थी। उनकी सैन्य टुकड़ी पाकिस्तान की। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और वह टुकड़ी यह चीमा नामक गांव के पास पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, और यह गांव भारत पाकिस्तान की सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड, और इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तान आर्मी। हवलदार हामिद, अब्दुल हामिद और 4 ग्रेनेडियर माने होता है हाथ गोला फेंकने वाली कंपनी, हाथ गोला फेंकने वाले सिपाही कंपनी के सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने का इंतजार कर रहे थे, उनका सामना करने का इंतजार कर रहे थे। और ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हामिद अपनी जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक खास बंदूक थी, एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक अब उनसे अधिक दूर नहीं थे। He could hit the tanks with the guns if he wanted to. यदि वे चाहते, अगर वो चाहते तो टैंकों को अपनी बंदूक से भेज सकते थे। If he wanted to, कह रहे हैं he could hit the tanks with the guns. यदि वे चाहते तो उन टैंकों को, पैटर्न टैंकों को अपनी बंदूक से भेज सकते थे।
He was a good shot, but he did not want to waste his shots. लेकिन वे बंदूक चलाने में माहिर थे। गुड शॉट माने बहुत ही महारत उन्हें हासिल थी, बहुत अच्छी तरह से वो प्रशिक्षित थे, वे माहिर थे बंदूक चलाने में, पर वह अपनी गोलियों को बेकार बर्बाद करना नहीं चाहते थे। He did not want to waste his shots. अपने बंदूक की गोलियों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tank with each of his shots. और वह चाहते थे कि हर गोली टैंक से टकराए, बेकार एक गोली भी न जाए, हर गोली टैंक से टकराए। The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. पाकिस्तानी टैंक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक थे। वे लगातार पास आते जा रहे थे। They were firing continually. They were approaching nearer and nearer. वे लगातार और नज़दीक आते जा रहे थे, पास आते जा रहे थे। They were firing continually. वे लगातार बारूद बरसा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। हिस्सा पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा और he turned his gun and fired a shot, और उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक गोली चला दी। The tank caught fire and went up in flames, और बंदूक के चलाते ही टैंक में आग लग गई और वह जल्दी से आग की लपटों ने उसे घेर लिया, अर्थात आग के गोले में परिवर्तित हो गया, वह आग की लपटों में जल गया, गिर गया। All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. और अब्दुल हामिद की टुकड़ी के सभी सिपाही बहुत ही खुश हुए, वे बहुत खुश थे। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उसने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट आल्सो बस्ट इनटू फ्लेम्स। उन्होंने दोबारा गोली चलाई और इससे भी वह ज्वाला का रूप ले लिया, अर्थात वह भी धू धू करके जलने लगा। 4 more tanks were seen. 4 और टैंक दिखाई दिए। The Pakistani wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी अब्दुल हामिद के दल पर हमला करके उसे और उसके सिपाहियों को मारना चाहते थे, उसके कंपनी के सिपाहियों को मारना चाहते थे। He was their biggest enemy. वह अर्थात हामिद उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। They turned the gun of their tanks towards him. उन्होंने अपने टैंकों की नाल उसकी ओर घुमा दी। Before they could fire, इससे पहले कि वे पाकिस्तानी फायर करते, आग का गोला बरसाते, अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक पर भी गोली चला दी और तीसरे टैंक पर भी को भी भेज दिया। एंड देयर ही वेंट, इट हैड कॉट फायर, और गोली लगते ही टैंक ने आग पकड़ ली। फ्लेम्स वे राइजिंग अप इनटू द स्काई, और आग की लपटें आसमान को छूने लगी, आसमानों की ऊंचाइयों तक उठ रही थी। बट एलास, लेकिन दुख की बात है, खेद की बात यह है, वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, और लेकिन दुखद बात यह थी कि दुश्मनों की टुकड़ी ने उसकी जीप को भेद दिया। एक गोली आकर के उनकी जीप में लगी और उनकी जीप को भेदती हुई एक
तोप का गोला जो है आकर के उनकी जीप को भेद गया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर हीरो जो है फेल डाउन माने वो गिर गए, बहादुर नायक नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड, वह बुरी तरह से घायल थे। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ही ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ते रहो और लड़ाई जारी रखो। कंटिन्यू फाइट ऑन माने युद्ध जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, वे माने बहादुर सिपाही उनके आदेश का पालन किया और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेर डिस्ट्रॉयड, जल्दी ही दुश्मनों के और टैंक भी नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वेर अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी सिपाही भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, थल सेना का इसे बहादुर सिपाही अपने देश के लिए उसने जान दे दी। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली, मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से, जो सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है परमवीर चक्र, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में लड़े गए युद्ध के सबसे बड़े, सबसे बहादुर नायक के तौर पर उन्हें हमेशा हमारे देश के लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, और उनके गांव का नाम भी उनके ही नाम पर हामिद धाम रख दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर कंप्रिहेंशन क्वेश्चन एक्सरसाइज हम कल कराएंगे। आप लोग, ये पाठ थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग 2 दिन में इसको आप पढ़ें और इसको याद करें, समझें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।